Hello students, how are you? I hope that you must be in good health. You must be fine. You must be busy with your studies. At the same time, I believe that you must also be getting worried about your syllabus and the examinations. लेकिन I too am worried on my part regarding all these things about the syllabus as well as the examination. अभी जिस बारे में हम आपसे आज बात करना चाहते थे, that is again regarding the syllabus. And as you know that I have been teaching modern political system, that is a compulsory paper in the MA second semester of which you are the students. And if I remember correctly, हमने आपसे बात किया था अब तक, जहाँ तक पिछली बार हमने आपसे क्लास लिया था, आपके साथ क्लास लिया था, that was regarding the third unit. तीसरी यूनिट के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे. और उस तीसरी यूनिट में भी हम जहाँ तक आपके साथ बात कर चुके थे, that was regarding rule application and the rule making department, that is the legislature and the executive. यहाँ तक हम आपसे बात कर चुके थे. Now what else is remaining in this third unit is about the rule adjudication department. यानी कानून निर्माण करने वाली, हमने आपसे बात किया था, कानून निर्माण करने वाली संस्था, कानून को लागू करने वाली संस्था, और अब कानून की व्याख्या करने वाली संस्था. इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशरी, और इन अ मोर टेक्निकल वर्ड वी से द रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट. Now here what is important for a student of MA, that is what would be more serious a discussion would be about what is the role of a judiciary in a liberal democratic order or in a liberal democratic political system. इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. अर्थात उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है. What kind of a role does a judiciary play in a democratic political system, or in a more complete way, the role of a judiciary in a liberal democratic political system. At the same time, in order to draw the contrast of judiciary, we also discuss the role of judiciary in the totalitarian political system. सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में राजनीतिक न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है. Now when we discuss the role of judiciary with regard to liberal democracy, then we say, हमारे दिमाग में 2-3 बातें आती हैं. Ultimately what is a liberal democracy? या हम क्यों कहते हैं उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों कहा जाता है, यानी इसके कुछ विशेषताएं हैं. इन वेरी ब्रीफ, बहुत अगर हम उसको संक्षेप में अगर हम जानना चाहें, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. What is a liberal democratic system? A liberal democratic system, as a very word defines, liberal means उदारवाद, उदारवादी विचारधारा. यानी when we are using the term liberal in reference to a political system, then we mean that political system should be open, यानी खुली राजनीतिक व्यवस्था होना चाहिए. When we say an open political system, it means that there must be the freedom to express one's opinion, the freedom to criticize the government, the freedom to protest against the government's decision. These are the hallmarks of an open system. Then we also say, what is a liberal democracy? What are the other characteristics of a liberal democracy? उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य क्या विशेषताएं हैं. जहां पर हमने कहा कि एक उदारवादी व्यवस्था में व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए, व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में बात कहने की स्वतंत्रता होती है. शासन व्यवस्था, ये सरकारों की आलोचना की स्वतंत्रता होती है. सरकारी निर्णयों के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने की
अर्थात उसके विरुद्ध असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि एक उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य विशेषताएं, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, अर्थात विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन एक बहुत महत्वपूर्ण एक विचारधारा है। आप जानते हैं कि दैट रूल ऑफ लॉ is an essential feature of the British political system. Now it has reached all parts of the world. In many parts of the world, in many political systems of the world, the notion of rule of law is being used. Today, no democracy is complete in the absence of the notion of rule of law. विधि के शासन के अभाव में किसी भी हम लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। Therefore, rule of law is an essential feature of a democratic political system. तो आज जब हम बात कहते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट अ कंप्लीट डेमोक्रेसी अनलेस इट इज लिबरल इन कैरेक्टर, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात पूरी तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसमें उदारवादी सोच ना हो। बिकॉज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम कुड फंक्शन बाय एस्टैब्लिशिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, by having regular elections as well. Everything could be there in a democratic system, but if people do not have the right to protest against the governmental actions, अगर जनता के पास स्वतंत्रता नहीं है कि सरकार के निर्णयों के विरुद्ध वो असहमति व्यक्त कर सके, to criticize the government or to suggest the government, then it will not be called as a liberal democracy. हम सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन अपने आप में पढ़ाई लिखाई तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक हम दूसरे के विचारों को हम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक दूसरे के विचारों को हम सम्मान नहीं देंगे, उनके विचारों को हम उनको समाहित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। इसीलिए उदारवाद होना बहुत ज़रूरी है, उदारवादी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नो डेमोक्रेसी कैन बी कंप्लीट अनलेस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म इन दैट, एंड लिबरलिज्म मीन्स द कैपेसिटी टू और द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड, एंड द कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक डाउन द क्रिटिसिज्म स्पोर्टिंगली और विद एन ओपन माइंड। इसीलिए जब हम बात करते हैं What is the role of judiciary in a liberal democratic order? हम वहाँ पर हम देखते हैं कि that today judiciary is playing a very important role in democratic countries all across the world. आज दुनिया भर में in many countries of the world we find there is a democracy. They are practicing, many countries are practicing, or they have erected a democratic political structure, and they are trying to follow the path of a true democracy. Though they may be still very back, they still may not be up to the mark insofar as the democratic credentials or the democratic spirit is concerned. But definitely there is a trend of growing democratization all across the world. Therefore, when we evaluate what is the role of judiciary in our democratic political order, then we find there are some very encouraging signs. न्यायपालिका की लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्थाओं में क्या भूमिका है, इसकी पहली बात अगर आप जानते हैं और यदि मैं आपको बताऊं तो ये है कि नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द जुडिशरी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अर्थात न्याय व्यवस्था का प्रशासन करना, न्याय व्यवस्था का संचालन करना, का क्रियान्वयन करना, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। Now, what is justice or the administration of justice? In very simple terms, it means dispensing justice to the people. अर्थात लोगों को न्याय दिलाना। ये बहुत पहले से अवधारणा चली आ रही है, but the modern state, when we talk about the modern welfare state, and the modern welfare state is basically an essential feature of a liberal democracy. एक लोक कल्याणकारी राज्य केवल उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही देखा जा सकता, अन्य व्यवस्थाओं में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए when we say that the administration of justice is the hallmark of a modern welfare state, and it is not wrong, it is not an overstatement.
लोक कल्याणकारी राज्य की एक बहुत बड़ी एक विशेषता यही होती है कि आम जनता को वो न्याय दिलाने का प्रयास करता है, न्याय दिलाने का प्रयत्न करता है। नाउ व्हेन वी से न्याय दिलाया जाता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द राइट्स एंड द लिबर्टीज और द फ्रीडम दैट आर एनश्राइंड फॉर द कॉमन पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, they are sought to be protected by the judiciary. For example, we can take our own country. We can take the example of America and England, because these are the countries about which we hear almost on an everyday basis. चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम लगभग रोज बातें सुनते रहते हैं, चाहे अखबारों में हम पढ़ें, चाहे हम न्यूज चैनल्स में हम देखें. But definitely we are very much aware of the political systems of these liberal countries. Therefore we find that in these three countries at least, और भी इसका मतलब नहीं कि यही तीन है, बल्कि in large number of countries the rights and duties, the rights and the liberties or the freedoms of the people are safeguarded by the constitution, and the constitution is protected by the judiciary. The judiciary of India is the guardian of the constitution of India. We know it very well. तो जो हमारे संविधान में पार्ट 3 में राइट्स एंड लिबर्टीज के बारे में बात कही गई है, उसकी रक्षा या उसकी सुरक्षा का कार्य एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकती है, और ये कार्य का संपादन न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है. नाउ इन रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन हाउ द जुडिशरी हैज बीन परफॉर्मिंग दिस टास्क इन अ वेरी वोकल मैनर. अगर हम पिछले कुछ डिसीजंस को लें, अभी हम पिछले कुछ वर्षों के हम डिसीजंस को लें, वी कैन कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, of the apex court, where it has tried to secure the various kinds of rights to the people, not specifically those rights that have been spelled out in the constitution, but rights ancillary to those fundamental rights that are there in the constitution. केवल भारत की न्यायपालिका ने केवल उन्हीं मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं किया जो हमारे संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं. उनके बारे में तो न्यायपालिका सन 1950 से एक बहुत कुछ सकारात्मक कार्य कर रही है, लेकिन अभी कुछ विगत वर्षों में हम देखें तो बहुत सारे अन्य ऐसे भी न्यायपालिका के निर्णय आए हैं जिसने एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया इन सो फार द राइट्स ऑफ द पीपल आर कंसर्न. फॉर एग्जांपल द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम न्यायपालिका ने अपने किसी निर्णय के द्वारा स्थापित किया 2005 में, जिसको अंततः पार्लियामेंट ने बनाया, बट इट डिड नॉट कम ऑन इट्स ओन, इट वाज इन फैक्ट पुश्ड थ्रू बाय द जुडिशरी. ये एक उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की न्यायपालिका की. इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो सी another very important example, that is the establishment of the National Human Rights Commission in 1993, जब न्यायपालिका ने इस बारे में कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे. Now this can happen only in a liberal country like India or in America or in England or other countries of the world. Generally when we use the word liberal democratic countries, we are generally referring to the Western democracies. पाश्चात्य लोकतंत्रों के बारे में इसका मूल रूप से बात होती है जब हम लोकतांत्रिक उदारवादी विचारधारा या व्यवस्था के बारे में कहते हैं. But now this term is not strictly used only with reference to the Western democracy, rather it has percolated down to the many of the developing world also. बहुत सारे विकासशील देशों में अब ये विचारधारा आती जा रही है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में. तो भारत में ये जो 2-3 अभी एग्जाम्पल दिए, इसका बहुत बड़ा ये एक हमारे सामने उदाहरण है जब न्यायपालिका ने ऐसा काम किया है. इसे हम कहते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. केवल लड़ाई झगड़े को सुलझाना ही न्यायपालिका का काम नहीं है आज की. दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कोर्स. लेकिन अभी जो रिसेंट, जैसे हमने कहा, जो डिसीजंस जो आए हैं, दैट हैव बीन वेरी पॉजिटिव इन नेचर. वी कैन से दैट द जुडिशरी परफॉर्म्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक ऑर्डर और इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के कार्यों को संपादित किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की न्यायपालिका के द्वारा. नकारात्मक में क्या हुआ, जैसे लोगों के मध्य जो विवाद होते हैं, दैट इज द डिस्प्यूट दैट आर देयर बिटवीन द पीपल, that are brought before the people, whether it is a civil case, whether it is a criminal case, or whether it is something related to service matters.
All these are disputes that are basically negative in character. So the judiciary dispenses this kind of justice to the people. It affords justice to the people in this way. और सकारात्मक जब हम बात कहते हैं तो सकारात्मक में यही है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बना at the behest of the judiciary. In recent years, we can say the privacy law has been enacted by the Parliament of India. But again, with the, we can say, with the influence or with the judicial pronouncements, न्यायपालिका ने जो अपने भूमिका निभाई है, जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं इस संदर्भ में, उसी के कारण ही, और हम जानते हैं जो प्रिवेसी लॉ आया है, that was a we can say a landmark judgment in this regard. So it is another very example. और भी बहुत सारे examples हैं. There is no dearth of good examples of a positive character. So this is a very important role of a judiciary in a democratic order. Then again we can find that judiciary also plays the role of a constitutional court. Constitutional court अर्थात संवैधानिक न्यायपालिका की भी भूमिका निभाता है न्यायपालिका, जो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहां पर. Constitutional court. What is the meaning of the constitutional court? Constitutional court basically means a court that resolves the disputes between the center and the states. केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो समय समय पर विवाद आते हैं, that are characterized as we can say that is bracketed under the original jurisdiction of the apex court. The original jurisdiction of the Supreme Court, it is the sole power of the Supreme Court. High courts do not have this kind of power, original jurisdiction. तो अर्थात this is the role of a constitutional court. We know that there is a constitutional court in other countries as well. In Switzerland, this kind of court is there. इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जर्मनी में भी है. अगेन द रोल ऑफ एन आर्बिटर इज प्लेड by the US Supreme Court as well. So we find that the judiciary plays a very important role in order to bring about a balance between the center and the states, between the federation and the federating units. तो ये इसकी दूसरी बहुत बड़ी भूमिका है. तो तीसरी भूमिका एक जो है न्यायपालिका की वो है, दैट इज द टास्क ऑफ द जुडिशियल लेजिस्लेशन. जुडिशियल लेजिस्लेशन अर्थात न्यायिक व्यवस्थापन, दैट इज द जुडिशियल लेजिस्लेशन. इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? वी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री. It is a basic document of the country. The constitution is there and therefore the judiciary functions within the four walls of the constitution. But in a number of countries we find that the constitution is not a complete document. Whether it is India, whether it is America, and of course Britain. Britain, there is no written constitution. Therefore it is either the parliament that is playing an important role or the other agencies. In America, we all know it very well that there are only 7 articles in the US Constitution. Very less has been spoken about the various organs of the state. So the task of expanding and the interpretation of the Constitution has been performed through the centuries by the US Supreme Court, by the American Supreme Court. Now when we come to India, we find the same thing. We know that the Indian Constitution is the largest constitution of the world, running into 395 articles, 12 schedules, 395 articles and 12 schedules, and divided into 22 parts. Despite having such a huge constitution, we are still finding that the constitution is either silent on some issues or it is ambiguous. So where the constitution is silent or ambiguous, in certain portions, there the judiciary comes into play. There the task of judicial legislation comes into play. अर्थात जहाँ जहाँ संविधान या तो शांत है या अस्पष्ट है, वहाँ न्यायपालिका की भूमिका स्वतः सामने आ जाती है. Constitution, the judiciary is not only the guardian of the constitution, rather it has the onerous task
of interpreting the constitution and the constitutional provisions. संविधान की व्याख्या करना, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करना, और विशेषता उन स्थलों पर जहां संविधान या तो मौन है या अस्पष्ट है. And the Constitution of India has been performing this function for a very long time. And therefore, under Article 141 and under 142, भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 तथा 142 के अंतर्गत this provision is there that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts of India. Article 141 says this. अनुच्छेद 141 जो भारत का संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, लॉ डिक्लेयर्ड, कानून तो नहीं, हाँ, जो लॉ डिक्लेयर किया जाएगा, यानी लॉ क्या, किसी फैसले का जो किसी केस में, किसी वाद विवाद में जो फैसला दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होगा आवश्यक रूप से. दैट द लॉ डिक्लेयर्ड by the Supreme Court shall be legitimate, shall be binding on all courts of India. This is provided under Article 141. और इसी आर्टिकल के साथ दूसरा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 142, वो कहता है in compliance with, in order to implement Article 141, the Supreme Court may issue certain decrees. It may issue certain orders to the subordinate courts. अर्थात सर्वोच्च न्यायपालिका अनुच्छेद 142 के अंतर्गत कुछ अन्य आदेशों को दे सकता है. किस लिए? जिससे कि उसका 141 के अंतर्गत जो उसने कोई जुडिशियल लेजिस्लेशन किया या जुडिशियल लॉ जो डिक्लेयर किया है, जो कोई न्यायिक फैसला सुनाया है, उसको सुचारू रूप से अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू किया जा सके. इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के अंतर्गत कुछ अन्य आदेशों को जारी कर सकता है. सो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142. नाउ दिस कैन हैपन ओनली अ लिबरल कंट्री. इट कैन हैपन ओनली अ लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर. This is not only there in India, but in some or the other ways it is found in other constitutions as well. Therefore, if in some, अगर हम उसको totality में देखें, then we find that the judiciary has a very big role, a very important role, a very significant role, not only in protecting the Constitution as a guardian of the Constitution, rather in legitimizing the Constitution as well, in legitimizing the political system as well. जुडिशरी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है. दो प्रकार की चुनौती है लोकतांत्रिक उदारवादी समाजों में. पहली बात क्या है? एक तो संविधान को वैधता प्रदान करना. अब कोई इसमें पूछे कि संविधान तो स्वयं वैधता का स्रोत है, तब जो ऑलरेडी जो कोई स्रोत है वैधता का, उसको कौन रिवैलिडेट करने की क्या आवश्यकता है? नो, देयर इज यू कैन से सम स्लिप्स रिगार्डिंग दिस थिंग. कुछ इसमें कहीं गैप है कहने का तात्पर्य है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ लुक एट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस ह्यूग्स, who was the Chief Justice of the American Supreme Court, who followed or who succeeded Chief Justice Marshall. तो Justice Hughes ने एक बार कहा था, though we are under the Constitution, but the Constitution is what the judges say it is. यद्यपि हम लोग संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान तो वही है जो हम न्यायाधीश लोग कहेंगे. Constitution is nothing different from what the judges say. Therefore, he said, though we are under Constitution, but the Constitution is what the judges say it is. लेकिन ये जो विचारधारा है या ये जो उनका वक्तव्य था, it was not appreciated. It was rather criticized a lot. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जो न्यायाधीश कहेगा वही संविधान होगा. न्यायाधीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है एक उदारवादी समाज में, या हम कह सकते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के संविधान की रक्षा करना, प्रतिरक्षा करना, उसको लेजिटिमाइज करने का प्रयास करना, ना कि संविधान के ऊपर संविधान स्वयं बन के बैठ जाना, जैसा जस्टिस ह्यूग्स की स्टेटमेंट ने करने का प्रयास किया था. So ultimately the judges have to follow the spirit of the Constitution, and nowhere they are supposed to be seen as overriding the Constitution. ये बात सही है कि that they are the speaking Constitution. संविधान
बोलता हुआ जो संविधान है वो जजेस के माध्यम से, न्यायाधीशों के माध्यम से है, लेकिन न्यायाधीश कभी भी संविधान के ऊपर दिखता हुआ प्रतीत नहीं होना चाहिए, और यदि होगा तब ऐसे में ही देयर इज अ प्रोविजन ऑफ impeachment or the removal of the judges of the Supreme Court and the High Courts of India. Under Article 124, judges of the Supreme Court can be removed for transgressing the Constitution. संविधान की मर्यादा का भंग करने के कारण, अर्थात for the inefficiency और for not following the provisions of the Constitution, for violating the Constitution, they can be taken to task. इसलिए एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि दे आर सपोज टू बी एज एजेंट्स और एज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेजिटिमाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एज रेबेलिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट एज ट्राइंग टू बी सिटिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरी बात क्या है, दूसरा चैलेंज क्या है लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर में? दूसरा चैलेंज ये है कि द जजेस आर सपोज टू लेजिटिमाइज अ डेमोक्रेटिक ऑर्डर एज वेल. अर्थात जो लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके पक्ष में उसको रहना है, ना कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस for the judiciary of a liberal democratic order to try to strengthen the democratic roots of the society, of the nation, try to follow the democratic ideals of the constitution. और इसीलिए अगर हम देखें भारत की न्यायपालिका को, सन 1978 के बाद से भारत की न्यायपालिका ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं. अब हमारी केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी नहीं है, एक संवैधानिक न्यायपालिका ही नहीं है जो संविधान के द्वारा स्थापित की गई है, उसे हम संवैधानिक न्यायपालिका कहते हैं. आज की हमारी न्यायपालिका ह्यूमैनिटेरियन जुडिशरी बन गई है, एक मानवतावादी न्यायपालिका बन गई है. इट इज अ नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रीचिंग द आइडियल जुडिशरी. एक आदर्शवादी न्यायपालिका के रास्ते में ये एक अगला कदम है. ह्यूमैनिटेरियन जुडिशरी, आज की जो न्यायपालिका है, वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए. जो भी समाज का जो वर्ग होगा, जैसा भी वर्ग होगा, हर वर्ग को, हर समुदाय को उसका ड्यू मिले, उसका जो वांछित न्याय है उसको प्राप्त हो. और इसीलिए वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है, और उस कल्पना को साकार करने में इन देशों की न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है. अच्छा, अब इसके आगे एक बात और भी है. जब हम डेमोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, जुडिशरी इन अ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, वहां पर हम ये भी देखते हैं कि दैट द जुडिशरी हैज टू ऑल्सो प्ले द लेजिटिमाइजिंग रोल फॉर द गवर्नमेंट. जुडिशरी इज not supposed to become the promoter of the government or the spokesperson for the government. लेकिन निश्चित रूप से न्यायपालिका को इस प्रकार से कार्य करना होगा कि वो उसको कन्फ्रंटेशन भी नहीं क्रिएट करना है. that balance has to be maintained. The balance that has been spelled out in the Constitution, that is Article 50 of the Indian Constitution, says that there shall be the separation of judiciary from the executive. कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण रहेगा. इसलिए दोनों के अपने अपने क्षेत्र है, लेकिन दोनों के अपने क्षेत्र रहते अलग होते हुए भी both are not supposed to create problems or impediments for each other. Both are supposed to function in a way that they supplement and complement each other. Only then the constitutional machinery of the country can move on. जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक मशीनरी है किसी भी देश की, तभी वो चल सकती है, अन्यथा नहीं चल सकती है. If the judiciary unnecessarily attacks the government or the government hits back at the judiciary, it is not going to serve anyone's purpose. But this kind of unfortunate happenings have happened in the Indian Constitution with regard to the judicial proceedings or the governmental proceedings in India.
when Justice Shellett, Hegde and Grover were superseded by the government way back in 1970. 1970-71 के बीच में जब सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को अवनत कर दिया गया था, यानी उनको सुपरसीड कर दिया गया था जस्टिस ए एन रे के द्वारा. जस्टिस ए एन रे was a much junior judge of the Supreme Court, but he was elevated to the top. And the 3 senior most judges कौन थे वो? जस्टिस शेलेट, हेगड़े एंड ग्रोवर. इन तीनों को सुपरसीड करके नीचे कर दिया गया था. सो दिस वाज एन अनवारंटेड interference in the judicial work. This convention was broken. The convention that the senior most judge of the Supreme Court shall be elevated to the top as the CJI or the Chief Justice of India. लेकिन this convention was broken in between 1970 and 71. So that was a confrontationist approach of the government. Now this has to be minimized. This should not be. This was an unfortunate happening, and this is not required for a democratic order. तो इसलिए गवर्नमेंट का जो रोल है, यानी एग्जीक्यूटिव का जो रोल है, और जो जुडिशरी का रोल है, बोथ हैव टू बी वेरी मच इन ट्यून विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट. तो इसलिए दोनों को एक दूसरे का प्रतिरोध के रूप में नहीं काम करना है, दूसरों के एक दूसरे के अवरोधक के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे पूरक और संपूरक के रूप में काम करना है. बट नाउ दिस पॉसिबिलिटी इज देयर ओनली इन अ लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर, नॉट इन अदर सिस्टम. देयरफॉर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड that judiciary has been playing a very important role, a very vital role in order to promote the liberal character or the democratic systems of many countries. बहुत बड़ा भूमिका उसने निभाया है. अगर न्यायपालिका का सहारा ना हो भारत देश में, तो संभवतः बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे भारतीय राजनीतिक तंत्र में. इसी तरह अमेरिका में भी बहुत सारी समस्याएं, किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी. अब हम बहुत संक्षेप में इस बात को भी देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस टू अ जुडिशरी व्हेन इट इज वर्किंग इन अ टोटलिटेरियन स्टेट. एक सर्वाधिकारवादी राज्य में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है. नाउ द सिचुएशन इज जस्ट द रिवर्स इन अ टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात सर्वाधिकारवादी राज्य. जैसा नाम बता रहा, सर्वाधिकारवादी, सर्वाणाम अधिकाराणाम समाहारा, अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसके पास सारे अधिकार हैं. सारे अधिकार से क्या तात्पर्य? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टोटल राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट? जैसे टोटलिटेरियनिज्म ये शब्द बता रहा है. दिस रिफर्स टू द फैक्ट दैट नॉट ओनली विद रिगार्ड to the public sphere, rather also with regard to the private affairs of the people, the government has the entire power. सरकार के पास न केवल सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, बल्कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन को भी क्रियान्वित करना, नियंत्रित करने का अधिकार होता है. इसीलिए टोटलिटेरियनिज्म कहा जाता है, सर्वाधिकारवादी समाज कहे जाते हैं, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं कही जाती है. वहां पर प्राइवेट और पब्लिक में कुछ भी डिफरेंस नहीं रह जाता. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट. दोनों में एक दूसरे से एकदम मिले जुले हुए हैं. नाउ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यू मस्ट बी नोइंग it is found in certain number of countries. कुछ ही देशों में है, बहुत ज़्यादा देशों में नहीं है. In North Korea we can find this system. Again in China is there. There is this kind of system in other parts of the world as well. लेकिन हमारे सामने नॉर्थ कोरिया और चाइना ये दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं. अथॉरिटेरियनिज्म और कम्युनिज्म में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट अगेन दे बिलोंग टू द सेम फैमिली. अथॉरिटेरियनिज्म में एक व्यक्ति का अथॉरिटी होती है, सत्तावादी जो व्यवस्था होती है, सत्तावादी एक व्यक्ति की सत्ता होती है. द एंटायर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड दैट वन पर्सन. फॉर एग्जाम्पल युगांडा का जो एक समय तानाशाह था, इदी अमीन, सो ही वॉज अ डिक्टेटर. द एंटायर पावर्स ऑफ द कंट्री, द एंटायर पावर्स ऑफ द सोसाइटी दैट वेस्टेड, दोज पावर्स वेस्टेड इन द डिक्टेटर. इसलिए डिक्टेटर का जो प्रोफाइल होता है, वो डिक्टेटर की शक्ति को बिखराव नहीं होता है. एक ही व्यक्ति में सारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ उसी में रहता है. वही संविधान होता है, वही न्यायपालिका का स्रोत होता है, वही कानून बनाने का स्रोत होता है. तो इसे हम कहते हैं अथॉरिटेरियनिज्म. एक व्यक्ति की जहाँ सत्ता होती है, अमर्यादित सत्ता.
बट इन कम्युनिज्म इट कुड बी अ बिट डिफरेंट. साम्यवाद जिसे हम कहते हैं, इट इज अ टोटलिटेरियन सिस्टम. साम्यवाद को टोटलिटेरियन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर ये एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा एक राजनीतिक ढांचा होता है जहां पर एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक राजनीतिक तंत्र में सब कुछ शक्तियां समाहित हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. नाउ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज अ कंप्लीट, यू कैन से अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. एक पूरी तरीके से एक ऐसा राजनीतिक ढांचा है जिसमें पूरे चीन की, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जीवन हो, जीवन का आयाम हो, पक्ष क्यों ना हो, वो सब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है. इसे हम कहते हैं सर्वाधिकारवाद. लेकिन सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में कोई आवश्यक नहीं है. सत्तावादी अथॉरिटेरियनिज्म में कुछ ऐसे पक्ष हो सकते हैं जहां पर थोड़ा बहुत स्वतंत्रता प्राप्त रहे. छोटी छोटी संस्थाओं को, निकायों को, छोटी कुछ संस्था को प्राप्त रहती है स्वतंत्रता. टू द एक्सटेंट दे डू नॉट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द डिक्टेटर. वहां तक उस स्तर तक उनको वो अधिकार मिला रहता है. लेकिन विद रिगार्ड टू कम्युनिज्म देयर इज अ स्टेट आइडियोलॉजी, देयर इज एन ऑफिशियल आइडियोलॉजी, एंड नो पर्सन, no organization, no institution has any authority whatsoever to transgress the official ideology. एक अर्थात एक राज्य की विचारधारा होती है, एक आधिकारिक विचारधारा होती है. चीन की जो आधिकारिक विचारधारा है अर्थात मार्क्सवाद, साम्यवाद, ये एक ऐसी विचारधारा है, इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है. That the Chinese party is the supreme organization, that the Chinese leader, that is the supreme leader, जैसे हम कहते हैं शी जिनपिंग जो है, he represents the entire communist party of China. So speaking against the Communist Party of China would virtually amount to be speaking against Xi Jinping. या शी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ बात बोलना, इसका तात्पर्य हम पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विरुद्ध बात कर रहे हैं, which would not be tolerated. इसलिए अब स्वयं अनुमान लगाया जा सकता है कि एक साम्यवादी व्यवस्था में, साम्यवाद में न्यायपालिका की भूमिका क्या हो सकती है. To be very clear and to be very crisp and precise, the role of a judiciary in a communist society or in a communist order is limited only to being the instrument of legitimizing the official ideology. यानी न्यायपालिका की जो भूमिका है वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी का या जो स्टेट आइडियोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने की एक लेजिटिमाइजिंग एजेंसी के रूप में रह जाती है. यानी जो कुछ कहा जाएगा चीन की साम्यवादी दल के द्वारा, या जो साम्यवादी दल का जो प्रमुख जो नेता है यानी शी जिनपिंग है, उससे पहले हु जिनटाओ थे, एक समय बहुत शुरू में तो माओ थे, यानी इन लोगों के द्वारा जो कुछ कहा जाता था वो सब उसको लेजिटिमाइज करने का काम न्यायपालिका का था. If the Chinese Communist Party does not approve of a particular thing, then the same language would be spoken by the judiciary of China. अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ कहा, अभी जो रिसेंट हमारे सामने एग्जाम्पल है विद रिगार्ड टू द कोरोना वायरस, जो पैंडेमिक सामने जो हमारी बात आई है, जो महामारी है, उसको हम ये सब जानते हैं कि इट इज अ क्रिएशन ऑफ चाइना टू अ लार्ज एक्सटेंट. नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट इट इज अ क्रिएशन ऑफ चाइना. इट इज अ काइंड ऑफ अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर. ये एक जैविक हथियार के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा था चीन की वुहान वायरोलॉजिकल लैब के अंदर. अनफॉर्चुनेटली स्लिप्ड आउट ऑफ देयर हैंड्स. नाउ इट हैज बिकम अ कॉमन नॉलेज फॉर द होल वर्ल्ड, बट चाइना हैज बीन डिनाइंग दिस फैक्ट. चाइना ने कहा नो, इट इज नॉट चाइना, रादर इट इज अमेरिका, बट द एविडेंसेस दैट वी हैव बिफोर अस स्पीक द अदर वे अराउंड. तो इसलिए जो चीन जो बात कह रहा है, इसी बात को वहां की न्यायपालिका भी कह रही है. किसी भी कोई भी न्यायपालिका जो भी, अगर हम रिसेंट उसके डिसीजन देखें, डिस्कशंस देखें, या जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, कहीं पर एक भी बात सामने नहीं आती कि चाइना के न्यायपालिका ने चीन की कार्यपालिका के विरुद्ध कुछ कार्रवाई किया या चीन के कार्य से वो सहमत नहीं है. वहां की न्यायपालिका ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, कतई नहीं कर सकती है. But this thing cannot be expected with regard to liberal countries, democratic countries like India, America, or Britain, or Canada, or other West European countries. But in China,
there is no alternative for the judiciary. Judiciary has to speak the same language, the language of the Communist Party of China, या नॉर्थ कोरिया में जो जुडिशरी होगी वो वहां का भी वही चीज बोली जाएगी. इसलिए there is no freedom of speech, there is no freedom of expression, there is no right to religion, there is no possibility of any kind of protest or any kind of dissent. You must have heard several examples where protesters have been either thrown behind the bars or they have been put to death. साम्यवादी व्यवस्थाओं में, टोटलिटेरियन सिस्टम्स में किसी भी प्रकार की असहमति व्यक्त करना, सरकारी निर्णयों के विरुद्ध असंतुष्टि जाहिर करना, ये बिल्कुल से स्वीकार नहीं करी जाती है, बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं करी जा सकती है. और 1989 में तियानामेन स्क्वायर का एक इंसिडेंट आपको संभवतः पता होगा. You are a student of politics. You must be aware of what happened in China in the year 1989 when the Chinese rulers, they crushed several hundred pro-democracy protesters under the wheels of the tanks. ढेर सारे सैकड़ों की संख्या में जो वहां पर लोकतंत्र के समर्थन में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, बेजिंग का जो एक बहुत प्रमुख चौराहा है जिसका नाम है तियानामेन स्क्वायर. तियानामेन स्क्वायर 1989 में ये वो चौराहा था जहां पर चीन के शासकों ने, चीन की सरकार ने हजारों या सैकड़ों छात्रों के ऊपर टैंक चढ़वा दिए थे. दे वर ब्रूटली किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट. अब आप समझ सकते हैं कि दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसेंट, देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजंस. लीव असाइड द राइट्स, द वेरियस काइंड्स ऑफ राइट्स. जो हमारे अधिकार मिलते हैं, हमारे अधिकार संविधानों में जिसको लागू करने के लिए हमारी व्यवस्थाएं, हमारे न्यायपालिका बहुत कटिबद्ध है, वो चीज़ें तो वहाँ के लिए एक दिवा स्वप्न है. अगर टोटलिटेरियन सोसाइटी में या टोटली सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में अगर कुछ अधिकार मिलते भी हैं तो ये वही अधिकार होंगे जो वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था चाहेगी. उतना ही उसका दायरा, उन अधिकारों का दायरा उतना ही होगा जितना वो व्यवस्था चाहेगी. लोग जितना डिमांड करेंगे वो नहीं मिलेगा. जीवन का अधिकार है तो उसमें 50 प्रकार के प्रतिबंध लगे रहेंगे. अगर उसमें रोजगार के बारे में कोई अधिकार दिया गया तो वही रोजगार के बारे में उतनी ही बात होगी जितना वहां की शासक आपको रोजगार दे सकती है. इसी प्रकार के अन्य अधिकारों के बारे में भी अगर अधिकारों का अतिक्रमण होता है, चीन ऐसे देशों में, नॉर्थ कोरिया ऐसे देशों में संविधान तो है, लेकिन अतिक्रमण यदि होता है अधिकारों का तो वहां की न्यायपालिका में यह साहस नहीं है कि वो चीन की शासन व्यवस्था के विरुद्ध कुछ आलोचना कर सके या उनके निर्णय को गैर कानूनी ठहरा सके. दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ टोटलिटेरियन सोसाइटी. सो देयरफॉर judiciary merely ends up as a spokesman or as a legitimizing agency of the governmental decisions. इसलिए there is a world of difference between the judiciaries of a liberal democratic order and that of the totalitarian systems. इसलिए it is to be studied, it is to be further explored what is the role of judiciary in these two kinds of regimes. है ना, इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं. But this was, a kind of an overview that I was trying to give to you about this concept, about this issue, that is what is the role of judiciary in these societies. और लोकतांत्रिक व्यवस्था जब हम बात करते हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य जो आज की जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका एक अभिन्न हिस्सा है. इसलिए एक लोक कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, तभी वो लोक कल्याणकारी राज्य रहेगा. अगर न्यायपालिका शून्य हो गई या उसकी आवाज अगर धीमी पड़ गई तो लोक कल्याणकारी नहीं रहेगा, तब वो शासन कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो जाएगा. शासकों के कल्याण के बारे में बात होगी, लोक उसमें से शब्द गायब हो जाएगा. सो देयरफॉर जुडिशरी हैज अ वेरी बिग चैलेंज एज also a very big opportunity
before itself, it can protect, it can promote, and it can preserve the democratic order in which they are functioning and in which they are living. But the same thing is not found with regard to the totalitarian political in the totalitarian political systems. So this is my talk before you about this today's lecture or about today's topic है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बात ये समझ में आई होगी, and I think that you are going to benefit from this from my lecture. और अगर किसी को कुछ और समस्या हो with regard to this, you can write a message to me. You are already in the group, I am also in the group. You can just write your message and you can tell me whether the lecture went down well with you or not, or what more else you require regarding this. Thank you so much and all the very best. Have a nice day, have a nice time in future. Thanks a lot.